بس یہ کہوں گی کہ جو آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، اکثر ہوتا ہے کہ لوگ برا کر جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں یار میں تو اس سے بدلہ لوں گے اور یہ وہ، نہیں، کبھی بھی یہ نہیں کرنا، یہ بدلے کا کبھی سوچنا ہی نہیں ہے۔ میرا نام ثنا یوسف ہے اور میں بلانگ چترال سے اچھا، کرتی ہوں۔ چترال سے۔ جی جی۔ تو اور جی جی کنٹینیو کیجیے گا۔ اور جو ہے ابھی جو ہے بیسکلی میں نے پری میڈیکل کیا ہے ایف ایس سی، اچھا اینڈ آگے جو ہے سوشل میڈیا اور اسٹڈیز کو لے کر چل رہی ہوں۔ اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ ثنا چترال سے آپ کا تعلق ہے، تو کیا پڑھائی آپ کی اسلام آباد میں ہوئی یا چترال میں ہوئی؟ نہیں، میں پیدا یہیں پہ ہی ہوئی ہوں۔ اچھا، پیدائش آپ کی یہی یہیں ہے، لیکن بیسک یعنی بنیادی طور پر آپ کے جو والدین ہیں ان کا تعلق چترال سے ہے۔ ادھر سے۔ والدین کیا کرتے ہیں آپ کے؟ والدین بیسکلی جو میرے بابا ہیں وہ نیشنل ٹیلی کام کمپنی میں ہوتے ہیں اور ماما جو ہے وہ ہاؤس وائف ہے۔ وہ ہاؤس وائف ہے۔ میرے ساتھ ابھی جب آپ کے ساتھ اسٹوڈیو میں تو میں نے آپ سے پوچھا بھی کہ آپ کی سہیلی ہے، تو آپ نے کہا نہیں والدہ ہے۔ والدین تو آپ دونوں نے سوچا تھا کہ ایک ساتھ ہی ایک ہی طرح رہنا ہے، مطلب اس نے بزرگ نہیں ہونا، بوڑھا نہیں ہونا، اور آپ نے بھی اس کو ایسی فریش رکھنا ہے؟ نہیں نہیں، ایکچولی ہمارے وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کافی ینگ ہوتے ہیں۔ نہیں ماشاء اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ بہت خوبصورت ہیں اور چترال کے لوگ بہت پیارے لوگ ہیں۔ میرا علاقہ بھی بڑا پیارا ہے، میں شانگلہ سے میرا تعلق ہے، اسی طرح گلگت بلتستان کے نوجوان لڑکے لڑکیاں سے جب میں ملتا ہوں تو آپ کی طرح ماشاءاللہ بہت پیارے ہوتے ہیں، ٹیلنٹڈ بہت ہوتے ہیں۔ خوبصورت ہونا ایک الگ چیز، لیکن اس کے ساتھ جب آپ ٹیلنٹڈ ہو یقین مانے آپ چھا جاتے ہیں۔ ثنا یہ بتائیے گا کہ یہ سوشل میڈیا پہ کیا کوئی تصویر لگائی تو اتنی زیادہ وائرل ہوئی، کیا تھا ایسا سب کچھ؟ ایکچولی میرا کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں سوشل میڈیا پہ آؤں گی، لائک کوئی ایسا، ایک تو آپ کا بیسک پلان ہوتا ہے کہ لائک آپ پہلے سے ہی کرتے ہو کہ ہاں مجھے اس فیلڈ میں جانا ہی جانا ہے، تو میرا بیسکلی وہ نہیں تھا۔ میں نے ایک رینڈم ویڈیو بنائی تھی، ایکچولی میری آئی ڈی تھی انسٹا پہ، لائک میں اس کو اتنا ٹائم نہیں دیتی تھی، تو میں نے رات کو رینڈم ویڈیو لگائی، میں نے اکاؤنٹ پبلک کیا اور میں وہ رات کو ویڈیو لگا کر سو گئی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں صبح اٹھوں گی تو لائک ویڈیو ملینز کراس کر جائے گی۔ جی ایسا ہی ہے، تو میں صبح اٹھی تو نوٹیفیکیشن بہت زیادہ آئی، لائک نارملی جتنی آتی ہے اتنی نہیں تھی، بہت زیادہ تھی۔ میں نے اوپن کیا، میں نے ویوز چیک کیے، وہ تو 11 ملین کراس کر گئی تھی۔ یعنی ایک رات میں آپ نے ویڈیو لگائی اور آپ نے سوچا کہ 2-3 لائک کمنٹس ہوں گے، صبح دیکھ لیجئے گا، اور اچانک جب آپ صبح اٹھی تو معاملہ جو ہے ملینز، کتنے ملین تک پہنچے؟ 11، 25 اور ایک 24، اس طرح ملین ہے، 10، 8 ملین اس طرح۔ کون سا آپ نے کالا جادو کر دیا تھا لوگوں کے دلوں پر کہ آپ نے اٹھیں گی تو یہ سب کچھ ہوگا؟ کیا کیا یہ لوگ؟ تو منتیں کرتے کہ ہم تو انسٹاگرام ہم نے بنائے، کوئی دیکھتا نہیں ہے، کہتے یار رہنے دے یار، سردار کو ساتھ میں ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو انسٹا پہ کیا دیکھیں گے؟ ایسا یہ گڈ ہمیں بھی سکھا دیجیے گا ذرا۔ تھوڑا آپ کو ہوتا ہے کہ نا لائک لوگ دیکھ دیکھ کر تنگ ہو جاتے ہیں نا، لائک ایک چیز کے کوئی ایستھیٹک پکچرز اپلوڈ کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے کوئی نیا آئے، کوئی چیز نئی آئے ہمیں ہمارے آگے۔ آپ نے ایسا نیا کیا کیا؟ لائک نیا تو جنتا جاننا چاہتی ہے آپ سے۔ نیا تو کچھ ایسا نہیں کیا تھا، لائک میں اتنے لائک لمبی ریلز نہیں بناتی کیونکہ لوگ بور ہو جاتے ہیں، جسٹ 1 منٹ کی ہوتی ہے یا 3-4 منٹس کی، لائک جسٹ رینڈم کیمرہ اٹھائے کچھ کہہ دیا اور بس ڈن لگا۔ کیا کہتی رہتی ہیں؟ کون سے شعر وغیرہ بول لیتی ہیں؟ لائک شعر وغیرہ تو کوئی اسپیسیفک نہیں ہوتا، لائک کوئی فنی کانٹینٹ ہوتا ہے، لائک بیسکلی میرا فرسٹ کانٹینٹ جو میرا اپنا تھا دیٹ واز لائک کہ پڑھائی ایک نشہ ہے، اینڈ ادھر سے گئی تھی کہ ہم یہ نشہ نہیں کرتے۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ بھائی سب چاہے ایک نشہ، آپ نے پڑھائی ایک نشہ بول دیا۔ پڑھائی ایک نشہ بول دیا کیونکہ کچھ زیادہ ہی پڑھ لیا تھا اس وجہ سے۔ تو نشے سے بھی مطلب فٹ اپ ہو جاتے ہیں، آپ فٹ اپ نہیں ہوئی مطلب؟ نہیں، نشے کو ساتھ ہی لے کر چلنا پڑتا ہے، یہ بہت ضروری ہے لائف کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ بتائیے گا کہ ثنا جو ہے وہ وائرل ہوتی ہے، گھر والوں کا کیا ری ایکشن ہوتی ہے؟ آپ کی جو سہیلی ہے یعنی آپ کی اماں جو ہے وہ کیا کہتی کہ پتر کون سے کاموں میں ہم نے آپ کو لگایا تھا، کون سے کاموں میں آپ پڑ گئی؟ نہیں، امی اور گھر والوں کا فرسٹ ریئیکشن یہ تھا کہ ابو از ریئلی سپورٹیو، اور ابو تو پہلے سے ہی بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ہر چیز میں، لائک وہ کسی چیز کو نہ نہیں کہتے ہیں، اینڈ لائک بیسکلی انسٹا پہ آنے سے پہلے لائک فیملی کا تھوڑا تھا کہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر جو ہے امی اور ابو کے سپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، امی کی بہت زیادہ سپورٹ اور ابو کی، تو اس وجہ سے اس لحاظ سے آپ بڑی چالاک ہیں، دونوں کو ایسے مینٹین کریں کہ ابو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ گھر میں چھت رو لو، اماں تو بیٹھی ہے اسٹوڈیو میں تو ایسا نہ ہو کہ پھر سے کہ اچھا تم نے اس کو زیادہ سپورٹ کیا، مجھے نہیں کیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے۔ آپ سے چھوٹا؟ آپ بڑی ہیں؟ جی میں بڑی ہوں۔
बड़ी ने शुरुआत बड़ी अच्छी कर ली है, वैसे मजे किया ने, देखिए मिलियंस फॉलोअर जो रणबीर सिंह के भी नहीं है, रणबीर कपूर के भी नहीं, और आपने बना लिया। अच्छा ये बताइएगा कि इंस्टा के हवाले से जो आपने रील डाली, आपने नहीं सोचा था कि सना जो है वो मिलियंस कई दिलों तक पहुंच जाएगी। अब इसमें जो कमेंट्स होते हैं, अब वहां पे कहीं ना कहीं आपको तकलीफ भी होती है। हमारे यहाँ ना कहीं भाषण देना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं जो है सजेशन मशवरे देना शुरू कर लेते हैं, तो उनसे भी बंदा तंग हो जाता है ना। कभी कभार मुझे भी थोड़ा सा दुख होता है कि भाई सब हम जो बोल रहे हैं हम थोड़ी अक्ल कुल है, या हमारी जो भाषा है, अक्सर मुझे कहते हैं कि भाई आपकी जो उर्दू है ये उस तरह सलीस नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं कहता हूँ भाई साहब अहले ज़ुबान थोड़ी, मैं तो पठान हूँ, हम तो गुलाबी उर्दू बोलने वाले हैं। तो इस किस्म की कमेंट्स या कुछ और चीजें, तो सना कमेंट्स पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती हैं? बेसिकली मैं कमेंट्स मैंने अभी तक अपने एक पोस्ट का कमेंट नहीं खोला। हाय रब्बा, ये जाती है। ये देखो नाज़रीन, ध्यान से देखिए, ये लड़की जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, आप मजे मजे के कमेंट्स कर रही है, पढ़ती नहीं है। मैं कमेंट्स कभी नहीं खोलती। मैं कहती हूँ कि चलो ऊपर से देख लिया। मैं ज़्यादा जो फोकस करती हूँ ना, मैं कहती हूँ अच्छा रील लगाई थी, कितने व्यूज़ आते हैं जरा देख लेती हूँ। ऊपर से देख लेती हूँ, ऊपर से देख लेती हूँ, चलो कितने लाइक्स हैं, हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट कब अपलोड करनी है वो सोचती हूँ। अच्छा सना ये बताइएगा कि एक तो रील्स, मैं चाहता हूँ कि मार्केटिंग के हवाले से मैं आपसे बात करूं, क्योंकि इस वक्त जितने गिफ्ट आपको मिले हैं, जितनी क्रीम्स वगैरह मिली हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपना एड्रेस आपको दे दूं और आप वहां भी अरसाल कर दें। लेकिन रील्स के साथ साथ पढ़ाई में कितना टाइम लगता है, और मुस्तकबिल में भी क्या सोच रखा है कि इंस्टा पे ही पैसा कमाओगे, नाम बनाओगे, या कहीं ना कहीं कोई फिल्म लाइन या मीडिया में आने का इरादा रखती हैं, या कहीं ना कहीं जो आपने ब्रेक में बात की कि दिल करता है कि मैं डॉक्टर ही बन जाऊं? दिल करता है कि डॉक्टर ही बनूं। अच्छा। बेसिकली इस प्रोफेशन को मैं कहती हूँ कि साथ लेकर चलूं, पढ़ाई के साथ, इसको साइड पे ना रखूं कि चलो पढ़ाई को छोड़ दिया, इसको मैं लेकर चलूं। अच्छा। बिकॉज पढ़ाई इज रियली इंपॉर्टेंट, आजकल के दौर में आपको तो बहुत ज़्यादा पता है। तो इसको मैं कहती हूँ कि इसको साइड पे ना छोड़ूं, अपनी पढ़ाई को भी डिस्टर्ब ना करूं, और अपने सोशल मीडिया को भी एक टाइम दूं। रील्स बनाने में हम लोगों को इतना टाइम नहीं लगता, इट्स जस्ट 1 सेकंड एंड देन डन, और फिर अपलोड कर दिए और डन। और बाकी जो टाइम होता है वो आप फोकस करो अपनी पढ़ाई पे, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना ये चला जाता है, फिर वापस नहीं आता। 21 यानी 11 मिलियंस तो आप फॉलो कर रही हैं। अब बहुत सारे जो ऑफर्स आती हैं, यानी सोशल मीडिया पे लोग आपको देख भी रहे होते हैं, तो कोई फिल्म या ड्रामा से कोई ऑफर आई है आपको? मुझे जो है ड्रामास में मैं अभी रिसेंट काम कर चुकी हूँ हम के साथ। अच्छा, गुड। और अभी अपकमिंग है एक क्या ड्रामा, क्या रोल है आपका? यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स है, इट्स नॉट लीड रोल, लेकिन अच्छा, आपको पता है। अच्छा। और क्या कहते हैं, और अभी अपकमिंग एक प्रोजेक्ट है, उसमें भी होना है। एंड अभी सॉन्ग की ऑफर आई थी। वाओ जी, गुड। मुझे लेकिन रील्स बनाते हुए आप, क्योंकि मैं खुद 1-2 फिल्मों में एज ए हीरो मैंने काम किया लीड रोल पे, फिल्म कितना आपको मुश्किल, या ड्रामा, सॉरी आपने ड्रामे में काम किया है, तो और ड्रामे में काम कितना कोई मुश्किल लगा, या आपको लगा वैसे जो रील बना रही हूँ ऐसे ही है, लेकिन थोड़े बहुत एक्सप्रेशन चेंज करने होते हैं? आई गेस कि उधर रील वाला तो कोई हिसाब नहीं होता। वो तो हम लोग कहते हैं कि हाँ, बिकॉज कैमराज होते हैं, एवरीबडी इज देयर डायरेक्टिंग यू कि ये नहीं करना, एक्सप्रेशन इस तरह रखो, उस तरह ना रखो। चाहते हुए, यानी चाहे आपने नहीं पी, सर में दर्द है, अम्मा ने डांटा भी, लेकिन आपको डायरेक्टर साहब बोलते कि आपने हंसना है तो आपने डिंटोने की तरह दांत खोलने हैं। जी, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। तो एक्सप्रेशंस वगैरह जो हैं, मतलब उसमें आप कितनी, आपको लगता है कि आपको रील ने एक फायदा दिया? आई गेस कि जी ऐसा ही है। अच्छा। कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाता है, आप जब कैमरा फेस करते हो तो वो चीज़ उधर जाकर मुझे कुछ नया काइंड ऑफ फील नहीं हुआ। मुझे लगा कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, अच्छा। जैसे मैं कोई एक्टिंग में कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगी मुझे। कोई नहीं लगी मतलब? और यानी पहले कैमरा शायद थी आप, या मेरी तरह मैं तो बड़ा शर्माता था जब पहली बार मैंने माइक पकड़ा हाथ में, और मैं सोचा कि क्योंकि मैं एज अ रिपोर्टर मैंने काम शुरू किया था, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं कैसे क्या बोलूं। मैं 1 घंटा लग गया था मुझे। सो आपको कोई वो नहीं हुआ? नहीं, मैं बेसिकली नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर मैं जब छोटी भी थी ना, पार्क वगैरह में जाती तो इंटरव्यू लेने आते, मैं सबसे पहले भाग कर जाती थी कि मैं इसको पकड़ लूँ और इसका इंटरव्यू दे दूँ ना। तो एक्चुअली उधर से ही जब छोटी थी तो इस तरह स्पीच वगैरह कॉलेज में बड़ी हो। अच्छा, हाँ, यस। तो स्कूल लाइफ में ना। अच्छा, स्कूल लाइफ में की बात कर रही है, तो वहाँ पे जो है आगे जाकर स्टेज पे जाकर वो करना, सिंगिंग में ये ले लेना, वो ले लेना। गाना भी गाती हैं आप?
नहीं पार्टिसिपेट उस टाइम पे स्कूल लाइफ में अभी कह रही जब इतनी छोटी चालाक थी। आप हो गई हैं, समझदार हो गई हैं भाई साहब, कि इनको पता है कि हरमीत सिंह कुछ पूछेगा कि कुछ गुना दो तो कहती है नहीं 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 नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आपने ड्रामे चैनल्स का नाम तो खैर मैं नहीं ले सकता, लेकिन जिन चैनल्स में आप काम कर रही हैं तो कौन से चैनल में अब अपकमिंग सुना है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट में भी कोई हिस्सा डाल रही हैं आप, या कोई इस तरह कोई नहीं है, छोटा मोटा रोल है? लाइक जो अपकमिंग है ना उधर Yes. है रोल, अच्छा लाइक उधर सही वाला जो रोल है। वो तो और नहीं है ना, ध्यान से देखिए ये है वो षड्यंत्र रचा रही है, इस तरह तो नहीं है नहीं, इस ना। तरह वो वाला अक्सर हम नहीं। इंडियन देखते हैं ना, वो 3 दफा तो वो कमर उनकी जो गर्दन है हिलती है, फिर वो मुड़ती है, हाँ, तो फिर शुक्र है मुड़ती ये है। नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामों में ये झलक अब देखने को मिलती है, तो उसमें मैं तो नहीं चाहता कि कहानी की तरफ जाएं, लेकिन किस किस्म का रोल, कोई नेगेटिव है या पॉजिटिव नहीं है? नहीं नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव ही है। लाइक नेगेटिव कर भी रब नहीं ने आपको सकती। चेहरा इतना पॉजिटिव दिया तो नेगेटिव तो होना नहीं चाहिए। नहीं वैसे होना अगर आपका विलन का रोल भी होगा तो दिल में वैसी धड़कन होगी कि हाय विलन ही ठीक है? ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि ड्रामा जो इससे पहले आपने की, अब जो ड्रामा आप कर रही हैं कितना वो मुख्तलिफ है, और आप कितनी एक्साइटमेंट है? दोस्त जो है, जाहिर बात है दोस्त होते हैं ना, हम भी जब गांव जाते हैं तो दोस्त हमसे पूछते हैं कि भाई साहब फला हीरोइन के साथ आपने काम किया था तो कैसा था ये काम, तो हम फिर बड़े तकिया लगा के बड़ा स्टाइल से बोलते हैं कि ऐसा ऐसे ही था। सो आप जब वायरल हुई, जी जी सोशल मीडिया पे वायरल हुई, अब ड्रामों में आ रही हैं, तो सहेलियां क्या कहती हैं कि सना आप जब मशहूर हो जाएगी तब तो हमें फिर लिफ्ट ही नहीं कराओगी? ऐसे बोलती ही हैं, है, हाँ? ऐसे ही है, अब तो ऐसे भी ही लिफ्ट है। नहीं कराओगी ना? नहीं नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ कि भूल जाऊं। अच्छा। तो क्या कहते हैं, वो तो ऐसे ही कहती थी कि अगर तुम निकल गई हो सना अब भूल जाओगी हमें, तो Yes, हमें ऐसे ही कहाँ होता है। देखोगी। नहीं लेकिन मैं अभी उनको मैसेजेस करती हूँ, उनके हर किसी का जवाब देती अच्छा, हूँ कि good. ये एक लड़कियों एक आप अगर सना को देख रही हो तो ध्यान से ये बात नोट कीजिएगा मेरे शो में, और ये ऑन द रिकॉर्ड यूट्यूब पे होंगी। इंसान में बदलाव आता है, थोड़ा बहुत आता है, लेकिन सना कह रही कि भाई साहब हम बदलने वाले नहीं हैं, हम चित्राल से हैं, चित्राल से, वल्लाह कसम हम नहीं बदलेंगे। अच्छा कौन सा एक्टर ज्यादा आपको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि अब आप इस फील्ड में आ गई हैं, एक्टिंग की तरफ आप आ गई हैं, तो कौन सा एक्टर आपको इंडियन एक्टर में या एक्ट्रेस में ज्यादा पसंद है कि उसके एक्सप्रेशंस, उसकी पर्सनालिटी, उसकी शख्सियत आपको अट्रैक्ट करती है? वैसे सच बताऊं तो मैं किसी को इतना देखती ही नहीं हूँ कि कोई मुझे अट्रैक्ट करे। तो मैं कहती हूँ कि एक है लाइक काइंड ऑफ लाइक इंडियन आई गेस एक्टिंग अच्छी होती है। एंड अभी जो हैं क्या कहते हैं कि हमारे जैसे हैं, आई रियली लाइक मायरा खान। अच्छा मायरा खान मेरी फेवरेट है, मेरी बहुत बहुत favorite है। कमाल की एक्ट्रेस है, जी, कमाल, and, बड़ी खूबसूरत इंसान है। फवाद खान। जी जी These two are my ये favorite. फवाद खान का बड़ा घर को जो लड़कियां हैं जो खूबसूरत है उसके पीछे हैं। अच्छा आगे कोई इंडियन और पाकिस्तानी में फवाद खान आपको पसंद है? मायरा खान हो गया, हो गई, सॉरी पठान हो ना, हो गई, हो गया, हम थोड़े से हो जाते हैं, चतराली भी ऐसे ही है। अच्छा तो मतलब आपको ज्यादा एक्टिंग किसकी अच्छी लगती है? यानी आप अम्मा बैठ रही, थोड़ी सी बंदा शर्मा भी जाता है ना कि हाय मैं अगर बोलूंगी कि रणवीर सिंह अच्छा लगता है तो फिर अम्मा चतरोल करेगी, लेकिन बहरहाल एक्सप्रेशन वाइज अगर मैं बात करूं, बहुत कमाल के एक्टर पाकिस्तान में पैदा हुए, इंडिया में पैदा हुए, तो एक्सप्रेशंस के लिहाज से अब जाहिर बात है आपने इस फील्ड में आ गई हैं आप, तो कम से कम मेरी प्रैक्टिस होती थी कि भाई साहब मैंने एक्सप्रेशन कैसे लाने, हर डायलॉग में कैसा बोलना है, शर्माना है, क्या करना है, तो ये चीज के लिए आपको देखना पड़ता है। तो कौन सा, यानी कौन से अदाकार? मैं तो अमिताभ बच्चन से बहुत ज्यादा मुझे बड़ा, अमिताभ बच्चन ऑब्वियसली, एंड आई गेस दीपिका पादुकोण। यस गुड, शी इज रियली नाइस। एंड आलिया भट्ट हो गई, आलिया कमाल की भट्ट एक्ट्रेस, होगी, कमाल। शी इज रियली, आपने देखी उनकी फिल्म है आई थिंक जिसमें उन्होंने गंगूबाई, गंगूबाई, कमाल का एंड रोल आई रियली लाइक इंडिया के एक्चुअली मूवीज और उनकी एक्टिंग तो बहुत ज्यादा कमाल Skill की बहुत होती है, कमाल के। बहुत ज्यादा कमाल की होती है उनकी। रिसेंटली जो पुष्पा है, हाँ सो पुष्पा अमेजिंग। में जो एक्टिंग कमाल की उस लड़के ने की है। अच्छा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक्टिंग की जो स्किल्स हैं, यानी एक्सप्रेशंस, इंस्टा पे सब कुछ आपका हम तो देख रहे हैं, हम चला भी रहे हैं, देखिए मैडम ऐसा नहीं है, हमारे पूरे से बहुत एक्टिव है और आपके तमाम तर विजुअल्स वो सारी चीजें स्क्रीन पर चल रही हैं। एक्टिंग स्किल्स के हवाले से क्या सोचे कि अब अगर प्रोफेशनली ऑफर हो रही है तो रब ने आपको एक खूबसूरत इंसान बनाया हुआ है, प्यारा चेहरा दिया है, अच्छी पर्सनालिटी दी है, क्या आपने सोचा है कि मैं अपनी स्किल्स को मजीद मजबूत बेहतर बनाने के लिए कोई जाऊं, इंस्टीट्यूट को मैं ज्वाइन करूं, कोई इंस्टीट्यूशन? क्या एक्चुअली मैं
انسان اس طرح تو لائک نہیں کہہ سکتا کہ میں پرفیکٹ ہوں ہر چیز میں. ہر چیز کو وقت کے ساتھ سیکھنا پڑتا ہے. اینڈ آئی ایم لائک ناٹ دیٹ کہ میں پرفیکٹ ہوں, مجھے بھی ایکٹنگ سیکھنی پڑے گی. لائک جیسے